5. But in the meantime, if we have any kind of query related with previous class, we have completed module 1, 2, 3, and 4. So if you have any kind of query related with them, then you can ask that. Or if you have no query, then please respond that also. Okay, few students are joining. It is good to see that students are joining way before class. Okay, Vipin Kumar is joining. Okay, Muskan Kumar is. Yeah, Sumit, good morning. Do you have any kind of query related with previous classes? Richa Kumar is joining. और सभी ने अपना टेस्ट 1 का रिजल्ट देख लिया है? Yes, student, please let me know. Have you checked your test 1 result? Okay, Shubham, Bipin have checked. Nikhil Kumar is also checked. Sumit Kumar checked. Tanushri checked. Are you satisfied with that result? Now my next question is that, are you satisfied with that result? Ankit Raj is joining. Shubham Kumar 34 is joining. Shubham is telling no, sir. Why, Shubham? Why you are not satisfied? How much you get, Shubham? 8. Okay. How much you was expecting? Okay, you was not satisfied because question was not tough, but you was did some mistake. Okay. Okay. Okay, 20 students have joined till now. So today we will going to start module 5, which is related with memory management and virtual memory. Okay, and as we have seen in the introduction to operating system also in module 1, we have various kinds of memory. Can you name some of the types of memory you know about? Types of memory you know about?
Suraj Kumar is joining. Primary and secondary. Prem Prakash Gupta has given response primary and secondary. Okay. Primary and secondary. Subham also. Raman, Abhishek Jaiswal, RAM and ROM. Prem Prakash also volatile memory. Okay. Okay. Non-volatile memory. Okay. Very good. शुभम प्राइमरी मेमोरी ही वोलेटाइल होता है ना? Yes. But what you tell about RAM and ROM? Is RAM and ROM both are primary memory, or one is primary and one is secondary? Short term memory and long term memory. Shumit Kumar. In which reference you are talking about short term memory and long term memory? Sumit, can you explain in which reference you are talking about short-term memory and long-term memory? Okay, Suraj Kumar is joining. Okay, so RAM volatile disk secondary. Akshay Raj, RAM volatile disk secondary. Okay, they are types. Okay. Okay, Simran Kumar is joining. Okay, so let's start today's session. And in here, we may talk about the main memory management. Okay, so the memory which we have to manage here is main memory. And main memory, as you know, it is called as RAM. Ashish Kumar is joining. RAM is called as a main memory. Do you know about this? We have a type of memory RAM. We have ROM. We have magnetic disk, magnetic tape. We have cache memory. We have a register is also coming to the part of memory. But here in the memory management, we mainly talked about how the main memory RAM will be managed. Okay, and why it is so important to manage memory? Why it is so important to manage memory? Because as we talked about, operating system works as a resource manager. Okay, operating system works as a resource manager, and one of the resource is known as memory. So somebody trying to join? Suesh. Okay, so we have to manage this memory, because and it is managed by mainly operating system, because that is the resource manager. And why it is so important to manage the memory? Because अगर यहाँ पे एक सिंपल एक लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास मेमोरी को मान लीजिए कि एक क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ प्लेस. It is a kind of place. Okay, where Priya Suman is joining. Okay, where data is stored. Data को क्या करेंगे? Store करेंगे. यही काम होता है मेमोरी का. मेन फंक्शन क्या होता है? डेटा को स्टोर करना. क्योंकि इस डेटा को आपका चाहे किसी भी टाइप का मेमोरी हो, इस डेटा को आपका सीपीयू यूटिलाइज करेगा इन द प्रोसेसिंग पार्ट. आप फर्दर इनपुट आउटपुट में आप इसको यूज करते हैं. इनपुट आउटपुट में भी इनको यूज किया जाता है. ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि डायरेक्ट जब भी एलिमेंट हमको चाहिए होता है, वी नीड सर्टेन एलिमेंट्स, वी नीड सर्टेन फाइल, एंड दोज फाइल
will always be reside or stored somewhere, and where it will be stored, then that device on which it is stored is called as memory. Okay, it is called as memory. So अब ये देखते हैं कि अगर मान लिया जाए why it is required to manage this resource, because we have various, okay, people are joining. Smriti Rupam is joining. So because we store, and you know about even operating system is also stored in memory. Okay, and we have data also. We have data, we have program. So many kinds, various kinds of information is need to be stored, and they are need to be stored in such a fashion that they are not, मतलब कि कोलिजन नहीं होना चाहिए, कोलिजन नहीं होना चाहिए, डेटा को आप इजीली रीड कर सके, डेटा को इजीली आप रीड कर सके, डेटा को इजीली आप राइट कर सके, डेटा को आप क्या कर सके, डेटा को रीएलोकेट, एलोकेट, अपडेट, सारा वर्क आप कर सके, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें करनी होती है, और डेटा हमारा लॉस भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मान लिया जाए हम किसी ने एक्स मानते किसी प्रोग्राम एक्स ने इस प्लेस पे कुछ डेटा 1 को स्टोर किया, और सडनली प्रोग्राम वाई ने क्या किया, इस डेटा को यहां से हटा करके डेटा 2 ला दिया, तो क्या हो गया, डेटा 1 क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इन सच ए सिनेरियो हम क्या चाहते हैं कि ये चीजें नहीं होना चाहिए, और हमारा जो रिसोर्स है विच इज मेमोरी मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन सच ए फैशन कि इसका बेटर यूटिलाइजेशन हो हमारे पास, क्योंकि मेमोरी जो हमारे पास होता है, वी हैव वेरियस, हो सकता है फिक्स्ड एलोकेशन हो या वेरिएबल एलोकेशन हो, कंटिन्यूस हो, नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन हो। तो ये सब चीजें हम बाद में, ये जो मैं टेक्निकल टर्म बोला कि फिक्स्ड एलोकेशन है, वेरिएबल एलोकेशन है। फिक्स्ड एलोकेशन मतलब कि क्या, कि कोई प्रोग्राम को अगर जाना है तो हमने क्या किया, मेमोरी को फिक्स्ड पार्ट में, मतलब 100 KB के पार्ट में क्या किया है, 100 KB के ब्लॉक्स में इसको क्या कर लिया, पार्टीशन कर लिया। वेरिएबल पार्टीशन इट मींस कि वी कैन हैव वेरिएबल साइज, किसी का 100 है, किसी का 200 है, किसी का 150 है, इन दैट। कंटिन्यूस एलोकेशन इट मींस कि अगर कोई प्रोग्राम है तो उसको कंटिन्यूस स्पेस चाहिए होगा, लाइक अरे इज एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस, and like a linked list is an example of non-continuous memory allocation। तो जब हमें कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन चाहिए तब हम क्या करेंगे, फिक्स्ड है तब क्या करेंगे, वेरिएबल साइज है तब क्या करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हमारा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। Okay, this is the main purpose of memory management. So moving forward, what we have to study throughout this memory management, so we have to study about what is the background, मतलब क्या है ये background। मैंने कुछ ऐसे अभी आपको इंट्रोड्यूस भी कर दिया है। विपुल कुमार इज ज्वाइनिंग। ओके, सो बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करना। स्वैपिंग क्या होता है, स्वैपिंग ऐसे आप जानते होंगे कि अगर ए है, बी है, ए की वैल्यू को बी से इंटरचेंज करनी है और बी की वैल्यू को ए से इंटरचेंज करनी है, तो दिस इज स्वैपिंग। और आप जब मेमोरी पढ़ते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, वी हैव अ लो स्पीड डिवाइसेस विच इज डिस्क, एंड वी हैव हाई स्पीड डिवाइसेस विच इज नोन एज मेन मेमोरी। तो हमारा क्या होना चाहिए, कि वी हैव डिस्क, we have disk and we have memory। तो आप जब भी देखेंगे सीपीयू का अगर कनेक्शन देखेंगे, सीपीयू आपका कनेक्टेड होता है मेन मेमोरी से, और एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है दैट इज कनेक्टेड टू द डिस्क। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन।
तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू हमेशा आपका मेन मेमोरी से डेटा को रीड करता है, ठीक है। इसमें कैशे वगैरह भी जुड़े होते हैं, कैशे वगैरह भी जुड़े होते हैं फॉर बेटर हाई स्पीड के लिए कैशे वगैरह भी जुड़ा होता है, ठीक है। बट मेन क्या होता है, मेन मेमोरी से। तो मेन मेमोरी में डेटा आएगा कैसे, डेटा आएगा आपका डिस्क से आएगा। तो मेन मेमोरी हैज अ रिस्ट्रिक्शन कि ये क्या है, 1 GB का मेमोरी है या 250 MB का मेमोरी है या 4 GB का मेमोरी है, बट दैट इज रिस्ट्रिक्टेड। सो हम क्या करेंगे, और इसका साइज क्या है, इट कैन बी 1 TB हो सकता है। तो हमें यहाँ पे किसी ब्लॉक का रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पे हमें चाहिए, मेन मेमोरी में चाहिए। तो वी हैव टू स्वैप आउट दिस and we have to swap in this। इसको हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करवाएंगे, और ये क्या होगा, स्वैप आउट होगा। मतलब मेन मेमोरी से ये बाहर की हो जाएगा और ये स्वैपिंग होगा, मेन मेमोरी के अंदर में आ जाएगा। तो वो हम स्वैपिंग में पढ़ते हैं। फिर आपका आता है कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। लाइक मैंने बोला अरे आपका कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है, और भी हम इसका पढ़ेंगे कि पार्टीशन हम करते हैं तो कैसे करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन क्या होता है, पेजिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल क्या होता है। दिस टू इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ये सब चीजें हम मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। To provide detailed description of various way of organizing, ये मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव है इस मेमोरी मैनेजमेंट को पढ़ने के पीछे, कि we have to give a detailed description of various ways of organizing memory hardware। मेमोरी हार्डवेयर को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। To discuss various memory management technique including पेजिंग, सेगमेंटेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में आपका चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसमें भी पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, इंटरव्यू में, सब जगह पेजिंग, सेगमेंटेशन, इन्वर्टेड पेज क्या होता है, सेगमेंटेशन विथ पेजिंग क्या होता है, तो ये सब चीजें पूछी जाती है। ओके, somebody is trying to join. मिथुन कुमार is joining. ओके, वो वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ये सर ब्रेक करके, बट पता नहीं मेरे इधर से गड़बड़ है सर। ओके, और किसी को नहीं हो रहा है? सुमित चेक कर लीजिए, शायद आप ही के साइड से होगा कुछ प्रॉब्लम। ओके सर। Okay, so paging and segmentation are two important things which we have to study here in this chapter, and even contiguous and non-contiguous memory allocation, फिर आपका internal fragmentation, external fragmentation, compaction, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो कि हमें memory management के अंदर पढ़ना है। To provide a detailed description of, ये उतना मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि this is not important for your university examination। तो चलिए बैकग्राउंड क्या होता है, प्रोग्राम्स मस्ट बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्क, जो कि मैंने बताया, इनटू मेमोरी एंड प्लेस्ड विद इन ए प्रोसेस फॉर इट टू रन। ठीक है, तो वही बात होती है कि आपका क्या है, आपका डिस्क है, वी हैव अ डिस्क एंड दिस डिस्क contains प्रोग्राम, जो आप सी का प्रोग्राम लिखते हो, सी या पाइथन में प्रोग्राम लिखते हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या होता है, आपका डिस्क वगैरह में स्टोर होता है। बट वी हैव टू डू द प्रोसेसिंग, हमको क्या करना पड़ता है, टू ब्रिंग दैट इनटू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हम लाते हैं ताकि हम क्या कर सके, इसको प्रोसेस बना सके, प्रोसेसर में डाल सके। तो फॉर दैट इट नीड्स टू बिकम द प्रोसेस, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है दैट इज अ पैसिव एंटिटी एंड प्रोसेस क्या होता है, दैट इज नोन एज एक्टिव एंटिटी। ठीक है, मेन मेमोरी एंड रजिस्टर आर ओनली स्टोरेज CPU कैन एक्सेस डायरेक्टली। तो
तो सीपीयू जो होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, वो क्या करता है, आपका आइदर मेन मेमोरी को या फिर जो रजिस्टर्स होते हैं उनको वो डायरेक्टली एक्सेस करता है। ओके, ये कभी भी आपका डिस्क को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। तो डिस्क को एक्सेस नहीं करता है तो इस केस में क्या होगा, मेन memory unit only sees a stream of address, read, request और address plus data and write request। तो मेन मेमोरी यूनिट में क्या होता है, आपके एड्रेसेस होते हैं, डेटा होता है, रीड या राइट इससे रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट होता है। सो दिस इज द पार्ट रिलेटेड विथ मेन मेमोरी। रजिस्टर एक्सेस इन वन सीपीयू क्लॉक, क्योंकि रजिस्टर मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर क्या होता है, सबसे टॉप में होता है हमारा रजिस्टर। तो रजिस्टर सबसे टॉप में होता है तो सबसे कम टाइम, क्यों ये टॉप में है, क्योंकि इसको सबसे फास्ट जो हमारे पास डिवाइस है, शिवानी प्रिया ज्वानी, जो सबसे फास्ट डिवाइस है विच इज नोन एज रजिस्टर टू स्टोर द प्रोग्राम और डेटा। ओके, तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लॉक साइकिल में क्या किया जा सकता है, इसको एक्सेस किया जा सकता है। मेन मेमोरी कैन टेक मेनी साइकिल कॉजिंग ए स्टॉल। अब चूंकि वही डेटा को अगर हम मेन मेमोरी से रीड करना चाहेंगे तो मेन मेमोरी कंपैरेटिव टू रजिस्टर क्या होता है, स्लो होता है। अब स्लो होता है तो आपका क्या है, रजिस्टर ने फास्ट एक्सेस करके प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया, उससे सीपीयू ने डेटा रीड किया, अब एक क्लॉक साइकिल में उसका वर्क कंप्लीट हो गया। बट जो आपका मेन मेमोरी था वो क्या ले रहा था, 5 क्लॉक साइकिल ले रहा था। तो अगर स्पीड के बारे में बात करें, ये कितना ले रहा है, 1 क्लॉक साइकिल। तो अगर स्पीड मिसमैच के बारे में बात करें कि स्पीड मिसमैच कितना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी 5 - 1, आपका स्पीड मिसमैच हो गया 4 क्लॉक साइकिल का। तो 4 क्लॉक साइकिल क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू वेट। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, स्टॉल। आप कोआ है, कोआ में भी जब आप पाइपलाइनिंग पढ़ेंगे तो पाइपलाइनिंग में भी आप पढ़ेंगे कि स्टॉल्स होते हैं, मतलब कि आपका कोई प्रोसेस कर दिया, अभी कोई इंटरमीडिएट है जो कि क्या कर रहा है, वेट कर रहा है रिजल्ट के लिए, तो उसको स्टॉल कहा जाता है। ठीक है, कैसे सिट्स बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर। आप देखे होंगे जब मैंने मेमोरी हायरार्की पढ़ाएगा तो वहां सबसे ऊपर आपका रजिस्टर्स था, फिर आपका कैशे मेमोरी था, फिर आपका क्या था, फिर आपका मेन मेमोरी था। तो आपका कैशे जो होता है, कैशे इज इन बिटवीन द रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। तो इसका स्पीड जो होता है वो ग्रेटर देन होता है आपका मेन मेमोरी से, बट लेस देन होता है रजिस्टर से। तो कैसे अगर हम अपना जो डेटा है जिसको सीपीयू इन फ्यूचर रिक्वेस्ट कर सकता है, तो उसको अगर हम कैशे के अंदर में रखेंगे तो इट विल गिव मी अ बेटर स्पीड, स्टॉल विल बी लेस इन दैट सिनेरियो। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द बेनिफिट ऑफ कैशे। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन। वी हैव टू प्रोटेक्ट ऑल्सो मेमोरी, क्योंकि मेमोरी का क्या होता है, मेमोरी इज लिमिटेड। तो भी अगर ऐसा नहीं हो कि हमारे पास जैसे कि आपने एक अरे बनाया 5 इसमें डेटा एलिमेंट स्टोर करने के लिए, लेकिन अगर आप कर रहे हो कि ARR आप 6 को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो क्या ये हो पाएगा, नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ARR 6 है ही नहीं। तो ARR 6 नहीं है, तो सो फॉर दैट वी हैव टू गिव द प्रोटेक्शन। एंड प्रोटेक्शन इसलिए दिया जाता है तो क्योंकि करेक्ट ऑपरेशन को वो परफॉर्म कर पाए। ARR में अगर हम कोई वैल्यू स्टोर भी करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, स्टोर होगा ही नहीं, क्योंकि वो मेमोरी एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द बैकग्राउंड्स रिलेटेड विथ मेमोरी मैनेजमेंट। Okay, now come upon to the base and limit register. Base
और लिमिट रजिस्टर रिलेटेड विथ मेमोरी होता क्या है? तो बेस जो होता है, ए पेयर ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर डिफाइंस द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस को डिफाइन करने के लिए बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को डिफाइन करने के लिए बेस एंड लिमिट रजिस्टर का यूज किया जाता है। CPU must check every memory access generated in user mode to be sure it is between base and limit for that user. अब कोई यूजर अगर मान लिया जाए एक्सेस करना चाह रहा है, कोई यूजर एक्सेस करना चाह रहा है किसी पार्ट ऑफ मेमोरी को, तो पार्ट ऑफ मेमोरी को तो सबसे पहले क्या होगा, उसको बेस होगा, इट मींस बेस रजिस्टर्स की वैल्यू होगी। अब बेस रजिस्टर में ऐड किया जाएगा आपका लिमिट रजिस्टर्स की वैल्यू को, और अगर जो यूजर जिस मेमोरी लोकेशन को वो एक्सेस करना चाह रहा था वो अगर आपका बेस और एडिशन किया हुआ बेस एंड लिमिट के बीच में होगा, तभी वो उस लोकेशन को एक्सेस कर पाएगा। What I mean to say that कि जैसे कि यहाँ पे आपका एक प्रोसेस है, प्रोसेस जो है इस मेमोरी सेगमेंट के बीच में रिसाइड कर रहा है। अगर मान लीजिए यूजर इसको एक्सेस करना चाहे, तो ये हो गया इसका बेस, और इसमें लिमिट कितना हो गया, लिमिट के रजिस्टर की वैल्यू गिवन है 120900। तो अगर हम इसको बेस और लिमिट को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 420940। तो अगर कोई लोकेशन होगा 30014, तो क्या वो इस बेस और इस लिमिट के बीच में आता है? नहीं, ये लोकेशन इस लिमिट के बीच में नहीं आता है। सो दैट्स व्हाई द एक्सेस विल बी डिनाइड। Why access will be denied? Because this location is not in between the base and limit. बेस प्लस लिमिट के बीच में ये नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई एक्सेस विल बी डिनाइड। ओके, क्योंकि वो किसी और प्रोसेस का पार्ट है, तो हम इस प्रोसेस को अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वी गिव द प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ बेस, कि बेस की वैल्यू इतनी है, मतलब कि अगर कोई अरे है, जैसे एक सिंपल अरे है, हर एक एलिमेंट 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है स्टोरेज के लिए, और अगर ये 5 एलिमेंट्स को स्टोर करना चाह रहा है, और बेस हम बोले कि बेस है 100, और अब मैं चाहता हूं कि 114 एड्रेस पे जो अरे में एलिमेंट है मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूं, तो क्या मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि इसका जो एड्रेस हो गया ये तो हो गया 100 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 102, ये क्या हो गया 104, ये क्या हो गया 106, ये क्या हो गया 108। आपका 114 आफ्टर दिस है, तो आपका अरे का साइज ही क्या है, आपका 5 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। तो ये एड्रेस क्या है, ये एड्रेस आउटसाइड ऑफ दिस अरे है, तो क्या होगा, इट इज नॉट permissible. So how we give the protection given to the memory management via the help of base and limit register. याद रखिएगा, बेस एंड लिमिट रजिस्टर को मिला करके हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस बनाते हैं। गेट इट? किसी को प्रॉब्लम? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। Nikhil responded, no sir. What about others? Suraj, Prem Prakash, no problem. Okay, so moving forward.
तो ये है आपका हाउ विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर, हाउ विद द हेल्प ऑफ दिस बेस एंड लिमिट हाउ वी कैन प्रोवाइड द हार्डवेयर एड्रेस प्रोटेक्शन। हार्डवेयर एड्रेस को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो सीपीयू क्या होगा? सीपीयू आपका सबसे पहले यहां पे एक एड्रेस को जनरेट करेगा, एंड सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है दैट इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस। यस स्टूडेंट, लॉजिकल एड्रेस होता है। और क्या होगा? इस एड्रेस को हम चेक करेंगे कि इज इट ग्रेटर देन बेस, इज इट ग्रेटर देन बेस, इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू बेस। अगर ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब है? तो चलिए, अगर मान लिया जाए सीपीयू कोई रजिस्टर कोई लोकेशन को एक्सेस करना चाहता है, तो क्या करेगा? वो एक एड्रेस जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस। और अगर वो लेस देन होगा, जो उसके लिए इंटेंडेड एड्रेस है, जो इस प्रोसेस के लिए इंटेंडेड एड्रेस है, उससे अगर लेस देन होगा तो इट मींस क्या है? वो एक गलत एड्रेस को जनरेट कर रहा है। गलत एड्रेस को अगर वो जनरेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? यहां पे आपका अगर वो एड्रेस बेस से बड़ा नहीं होगा, बेस की वैल्यू जो एड्रेस होगी, जो एड्रेस होगा, एड्रेस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? आइदर ये क्या है? ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? सिर्फ दो रिजल्ट हो सकता है, आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू होगा इट मींस यस, फॉल्स होगा तो नो। अगर फॉल्स हुआ तो वो क्या हो जाएगा? ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर एड्रेस एरर। ये क्या बताएगा? कि आपका एड्रेस में एरर है। और अगर ये पास कर जाएगा इट मींस यस, इट मींस जो आपका एड्रेस सीपीयू ने जनरेट किया है वो बेस से बड़ा है या बेस के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट इज यस। अब फिर क्या होगा? फिर कंपेयर होगा कि जो आपका एड्रेस है, जो आपका एड्रेस है वो क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए आपका बेस प्लस लिमिट से। वो क्या होना चाहिए? एड्रेस जो जनरेट किया गया है किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा, दैट मस्ट बी लेस देन बेस प्लस लिमिट। बेस प्लस लिमिट लेस देन होना चाहिए, क्योंकि फिर से मैं प्रीवियस में जा रहा हूं, क्योंकि अगर वो इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा या इक्वल होगा तो क्या होगा? वो अब इस प्रोसेस को एक्सेस करना चाहेगा। ओके, तो उसको क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, तभी वो इस प्रोसेस को एक्सेस कर पाएगा। सो इन दैट सिनेरियो आल्सो इट विल जनरेट आंसर इन यस और नो। अगर मान लिया जाए लेस देन होगा यस, तो वो क्या करेगा? उस मेमोरी एलिमेंट को एक्सेस करेगा। और अगर होगा नो तो फिर से क्या हो जाएगा? ये ट्रैप में फंस जाएगा और ये क्या करेगा? एक एड्रेस एरर जनरेट करेगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस we give the protection to hardware. Okay, अब नेक्स्ट हम आते हैं एड्रेस बाइंडिंग की तरफ। जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में देखे थे, सीपीयू हमारा एड्रेस जनरेट करता है। तो सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है उस एड्रेस को सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है उस एड्रेस को कहा जाता है लॉजिकल एड्रेस। और जो आपका रैम वगैरह जनरेट करता है, मेन मेमोरी वगैरह जो जनरेट करता है, उस एड्रेस को कहा जाता है फिजिकल एड्रेस। एंड जो प्रोसेस या कंपोनेंट आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, तो उसको कहा जाता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU, ये आपका एक कंपोनेंट है जो कि आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। प्रोग्राम ऑन डिस्क ready to be brought into memory to execute from a input queue. Okay,
without support must be loaded into address 4 times 0. Inconvenient to have first user process physical address always at 00. How can it not be? मतलब कि अगर मान लिया जाए जो प्रोसेस है उसको, जो प्रोग्राम है उसको, जो डिस्क में प्रोग्राम है उसको हमको रन करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको सीपीयू किससे कम्युनिकेट करता है, आइदर रजिस्टर से कम्युनिकेट करता है या मेन मेमोरी से। तो आपका डिस्क जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू, किससे, आपका मेन मेमोरी से। तो मेन मेमोरी क्या करेगा, जब प्रोसेस कोई प्रोग्राम प्रोसेस में बदलना चाहेगा तो उसको पहले आना होगा मेन मेमोरी के अंदर में। तो मेन मेमोरी के अंदर में क्या होगा, हर बार अगर कोई प्रोसेस जो फर्स्ट टाइम लोड होगा तो वो 00 लोकेशन पे लोड होगा, तो क्या होगा, इट विल बी डिफिकल्ट to assess that where the process is. Vishal Raj is joining. अच्छा अभी क्लास है। Further, address represented in different way at different stage of program life. Okay, तो जो एड्रेस होता है आपका, उसको क्या, जब आपका प्रोसेस का वेरियस स्टेज होता है तो उस पे अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इन्हीं को जो नाम दिए जाते हैं, मतलब लॉजिकल एड्रेस है या फिजिकल एड्रेस है या आपका पेज टेबल के लिए एड्रेस है या उसके ऑफसेट की वैल्यू है, तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है कि एड्रेस को बाइंड किया जा रहा है, एड्रेस की बाइंडिंग की जा रही है। सोर्स कोड एड्रेस यूजुअली सिंबॉलिक, जैसे कि आपने बनाया int a इज इक्वल टू 10, तो अभी जो आप जिस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं उसको आप एज अ नेम a से जान रहे हैं कि a इज इक्वल टू 10 है। तो यहां पे नाम क्या है, सिंबॉलिक है कि a रिप्रेजेंट्स 10 या a के लोकेशन में आपका 10 स्टोर है। कंपाइल कोड एड्रेस बाइंडिंग टू रीलोकेटेबल एड्रेस। ओके, कंपाइल टाइम में क्या होता है, रीलोकेटेबल एड्रेस कहा जाता है कंपाइल टाइम के समय में, क्योंकि आपका वहां पे क्या होता है, आपका रीलोकेटेबल जो आपका एड्रेस होता है उसके साथ ऐड करके उसको दूसरे लोकेशन में, आपका बेस रजिस्टर होता है, बेस रजिस्टर में क्या किया जाता है, कुछ वैल्यू को ऐड किया जाता है और उस एडेड वैल्यू को हम क्या करते हैं, अपने मेमोरी में चेक करते हैं कि वो वहां पे है या नहीं है। तो अगर कंपाइल्ड कोड है तो उस समय उसको रीलोकेटेबल एड्रेस कहा जाता है। लिंकर और लोडर will bind relocatable address to absolute address। अब जो आपका कंपाइलर ने एड्रेस जनरेट किया उनको अगर आप लिंकर और लोडर के समय में जो बाइंड किया जाता है उस एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस कहा जाता है। एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, जिस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपका प्रोग्राम या वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है तो उसको एब्सोल्यूट एड्रेस कहा जाता है। ईच बाइंड्स मैप वन एड्रेस स्पेस टू अदर। ओके, सो दिस इज द सिंबॉलिक एड्रेस, रीलोकेटेबल एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस। एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है कि वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेस वी बाइंड आवर प्रोग्राम या प्रोसेस टू वेरियस काइंड्स ऑफ एड्रेसेस लाइक सिंबॉलिक एड्रेस, relocatable address and absolute address। symbolic address क्या होता है, like a is equal to 10। relocatable address क्या है, मान ले जाए कि आपका बेस का वैल्यू है 100 प्लस 40 करेंगे तो 140 जो हो गया, ये क्या हो गया, ये एक relocatable address हो गया। अब इस एड्रेस को जब लिंकर और लोडर में लेकर के जाएंगे तो इनको फिर से बाइंड अप किया जाएगा और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि आपका ए जो है वो आपका 74014 पे आपका स्टोर है, तो ये कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट एड्रेस। ओके ओके स्टूडेंट,
Do you have any kind of problem? And why number of students are less? I'm telling you, student, in the next test, if you will not have 60% attendance, then I will not allow to sit in that test. Okay, please circulate this message. If you will not have 60% attendance till now, then you will not allow to sit in test 2. ओके, चलिए। बहुत लोग एक्सक्यूज दिए मुझे कि सर ये एक्सक्यूज है, ये एक्सक्यूज है, और वो बाद में भी क्लास ज्वाइन किए नहीं। ठीक है, तो यहाँ मेरा वर्क नहीं है कि आप क्लास ज्वाइन करें, आपको अपनी इच्छा से मैं सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको लाइटली लें। डू ज्वाइन द क्लासेस, अदरवाइज आई विल डिबार्ड यू फ्रॉम नेक्स्ट टेस्ट ऑल्सो। ओके तो चलिए, अब जो आपका बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू मेमोरी, मतलब ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है और डेटा है, इसको हम कैसे बाइंड करेंगे मेमोरी के साथ। तो एड्रेस बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेस कैन हैपन एट 3 स्टेजेस। ये आपका 3 स्टेज क्या है, आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि आप C या C++ के कोड को रन करते हैं। तो देन यू नो अबाउट व्हाट इज कंपाइल टाइम, व्हाट इज लोड टाइम एंड व्हाट इज एग्जीक्यूशन टाइम। ये 3 टाइप का टाइम होता है। इस समय एड्रेस की बाइंडिंग की जाती है, किसके, आपका आइदर इंस्ट्रक्शन और डेटा का एड्रेस का बाइंड किया जाता है मेमोरी। ठीक है, तो कंपाइल टाइम, इफ मेमोरी लोकेशन नोन अ प्रायर। ओके, अप्रायर लोकेशन है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को वहीं पे जाकर के स्टोर होना है। तो अगर कंपाइल टाइम में ही ये तय हो चुका है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को या वेरिएबल को या आपका स्ट्रक्चर को या इन्यूमरेटर को या यूनियन को, किसी भी चीज को या फंक्शन को ही आपका इस जगह पे जाकर के स्टोर होना है, तो वो क्या कहलाएगा कि कंपाइल टाइम में ही आप उसका एड्रेस को जानते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट कोड कैन बी जनरेटेड, मस्ट रिकम्पाइल इफ स्टार्ट लोकेशन चेंजेस। उस केस में जहां पे कि आपको अप्रायर आपको नॉलेज है कि वेयर द लोकेशन विल बी, तो उसको क्या कहा जाता है, वहां पे आपका जनरेट होता है आपका एब्सोल्यूट कोड। और एब्सोल्यूट कोड जो जनरेट होता है, अगर उसका लोकेशन चेंज होना है तो उसको हमको फिर से रिकम्पाइल करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि आप अपना कोड को क्या किए, कोड को कंपाइल किए, आपने क्या किया, उसको रन किया, फिर से आपने क्या किया, फिर से उसमें कुछ चेंज किया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपने पहले कोड को क्या किया, कंपाइल कर लिया, रन किया, अब आपने कोड में कुछ चेंज किया, a+b के जगह a×b किया, लेकिन अब आपने कंपाइल नहीं किया, अब आप उसको डायरेक्ट रन कर रहे हो। तो आपका जो ये चेंज का इफेक्ट होगा ना, आपको प्रोग्राम के अंदर में नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका जो उसका एब्सोल्यूट कोड है वो जनरेट हो चुका है, और उस एड्रेस पे जो एब्सोल्यूट कोड है उसमें वो चेंज अभी रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है, क्योंकि आपने कंपाइल किया नहीं इसको। तो इस कारण जब भी आप चेंज करते हैं तो आपको कहा जाता है कि यू मस्ट फर्स्ट कंपाइल योर प्रोग्राम, बिकॉज द एब्सोल्यूट कोड इज ऑलरेडी जनरेटेड फॉर दैट, and if you want to change that, then you have to recompile your code. Is it clear to all of you? Is it Yes, clear? sir. Okay, have you seen this situation? Yes, sir. Gone through this situation? Okay. Then होता है आपका लोड टाइम। लोड टाइम क्या होता है, मस्ट जनरेट relocatable code if memory location is not known at compile time। जैसे कि आपके डेटा स्ट्रक्चर एक आपको पता होगा, लिंक्ड लिस्ट को कहां पे जाकर के स्टोर करना है, ये आपका क्या होता है, जब तक कि ये लोड ना हो जाए, जब तक ये प्रोग्राम लोड ना हो जाए तब तक ये पता नहीं होता है। तो
इस केस में क्या होता है, मेमोरी जो आपका जनरेट किया जाता है, जो एड्रेस या कोड, उसको रीलोकेटेबल कोड कहा जाता है, क्योंकि हर एक रन टाइम पे आपका जो होता है डायनेमिक टाइम पे इसका चेंज होता है। जैसे कि आप न्यू कोई वेरिएबल बना रहे हैं, न्यू कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मैलॉक या न्यू करके, इन मैलॉक फंक्शन या न्यू आपका कीवर्ड के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो उनका क्या होता है, एट द रन टाइम ही इनको मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाता है, मतलब एट द लोड टाइम इनको मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाता है, इसलिए इनको जनरेट किया जाता है रीलोकेटेबल कोड को। इफ मेमोरी लोकेशन इज नॉट नोन एट कंपाइल टाइम, क्योंकि ये डायनेमिक होते हैं तो इनका कंपाइल टाइम पे क्या होता है, लोडिंग होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इनके लिए क्या किया जाता है, रीलोकेटेबल कोड जनरेट किया जाता है एट द फॉर दोज whose address is not known at the compile time. Then आपका आता है execution time, it means run time. Binding delayed until run time if the process can be moved during its execution from one memory segment to another. मतलब कि एक मेमोरी सेगमेंट से दूसरे मेमोरी सेगमेंट में अगर जा सकते हैं तो उस केस में जो आपका एड्रेस का बाइंडिंग किया जाता है वो एग्जीक्यूशन टाइम में बाइंडिंग किया जाता है या रन टाइम में बाइंडिंग किया जाता है। और इनके लिए अगर एग्जीक्यूशन टाइम में बाइंडिंग की जाती है तो इस केस में हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, किसका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है बाय द हेल्प ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर, जो कि मैं आपको इससे पहले स्लाइड में दिखा चुका हूं कि कैसे हम बेस एंड लिमिट रजिस्टर के हेल्प से हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कंपाइल टाइम बाइंडिंग क्या होती है, लोड टाइम क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, और इसमें एड्रेस बाइंडिंग कैसे की जाती है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस स्टूडेंट, डू लेट मी नो, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Okay, so now I'm giving you link for today's attendance. Kindly fill it up. I have provided you link for today's attendance. Kindly fill up your attendance. Okay, 5 students have already responded. Ankit Raj, Mohit Raj, Suraj Kumar, Suraj Priyadarshi, Richa Kumari, Aman Raj, Ricky Raj. राज बहुत हैं आपके क्लास में, क्या बात है? और ये इंफॉर्मेशन, पप्पू आर यू हियर? पप्पू आर यू हियर? Okay, please circulate this information that if you will not have 60% attendance before test 2, then you will not be allowed to take part in that. And as I informed you also earlier that these marks, test marks, will be included in your midterm examination. So please circulate this information.
Okay, thank you. Now, student, if you have any kind of query related with today's session, then you can ask your queries. Okay, let's see how many students have joined. Okay, 29 student, 30 student have given the response. Okay. Okay, so you have no query. So let's begin. We have 10 minutes left. So let's utilize the time. तो आपका क्या होता है, अब ये जो हमने बात किया कि एक प्रोग्राम के अंदर में हमारे पास क्या होता है, कंपाइल टाइम होता है, लोड टाइम होता है, एग्जीक्यूशन टाइम होता है। तो ये कब होता है और उस समय क्या वर्क हो रहा होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर में, उस चीज को हम देखना चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेजेस क्या होते हैं प्रोसेसिंग ऑफ यूजर प्रोग्राम में। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछे जाती है, इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं कि आपका सबसे पहले क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम जो आपने लिखा कोड, फिर आप क्या करते हैं, इसको आइदर आप कंपाइल करते हैं या असेंबल करते हैं। तो इसी टाइम को जब आप कंपाइल या असेंबल करते हैं तो इसी टाइम को आपका कंपाइल टाइम कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, कंपाइल करने के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, मतलब कि आपने देखा .obj फाइल करके एक प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने लिखा fcfs.cpp, तो जब आप इसको कंपाइल कर लेंगे तो आपका एक fcfs.obj फाइल क्रिएट होगा और इसको ऑब्जेक्ट मॉड्यूल कहा जाता है। इस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में हो सकता है कि आप दूसरे भी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का यूज करें, इट इज मे पॉसिबल कि अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का भी यूज किया जा रहा हो, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है कि किसी अदर प्रोग्राम के कुछ मॉड्यूल्स को आप यूज कर रहे हो, तो अदर मॉड्यूल भी यूज किए जाते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, इनको फिर लिंकेज एडिटर या लिंकर के थ्रू क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है आपके प्रोग्राम में। जैसे कि आपने सीपीपी का कोई प्रोग्राम लिखा तो आप क्या करते हैं, iostream.h करके एक हेडर फाइल को ऐड करते हैं। अब इस हेडर फाइल के अंदर में क्या वर्किंग है, उसको क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ लिंकर उसको क्या किया जाता है, आपके कोड के साथ अटैच किया जाता है और इसको लिंकेज एडिटर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो यहीं से जैसे ही लिंकेज एडिटर का काम शुरू होता है, यहीं से आपका लोड टाइम स्टार्ट हो जाता है, यहीं से आपका लोड टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये लिंकेज एडिटर काम कर लेता है तो आपका एक लोड मॉड्यूल जनरेट होता है, लोड मॉड्यूल जनरेट होता है और फिर वो चेक करता है कि सिस्टम लाइब्रेरी, मतलब आईओ स्ट्रीम जो है या एसटीडीओ या एसटीडी-लिब, इन सिस्टम लाइब्रेरी के किस फंक्शनैलिटी को आप यूज कर रहे हैं, तो इनको क्या किया जाता है, लोडर के हेल्प से आपके प्रोग्राम में लोड किया जाता है और यहीं पे आपका लोड टाइम कंप्लीट हो जाता है। ये आपकी लोडिंग की पूरी वर्क कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो अदर मॉड्यूल्स हैं बेसिकली ये तो अदर किसी अदर लोकेशन पे है ना, इनका कोई अलग बेस एड्रेस है, तो और इसका आपका कोड का जो ओबीजे मॉड्यूल क्रिएट हुआ है वो एक अलग एड्रेस पे है। तो इनको क्या किया जाता है, रीलोकेटेबल एड्रेस के थ्रू क्या किया जाता है, आपका जो प्रोग्राम है, जो मॉड्यूल है क्रिएट हुआ है, उसके साथ क्या किया जाता है, लिंक कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डायनेमिक लोड या सिस्टम लाइब्रेरी को यूज किया जाता है, इसमें डायनेमिक लिंकिंग की जाती है, जहां पे कि हमें डायनेमिक लिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि आप यूज करते हैं न्यू, मैलॉक, कैलॉक,
जैसे कि आपने यूज किया लिंक लिस्ट, उस समय आपको डायनेमिक लोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो डायनेमिक लोडिंग के समय रिक्वायरमेंट होती है, और जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उस समय आपका EXE फाइल क्रिएट होता है, तो वो टाइम कहलाता है आपका एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन टाइम। So this is all about the various stages through which a user program have to pass to become a process, to become an executable file. Now come upon to the logical versus physical address space. तो आपका क्या होता है यहाँ पे, we have logical address space, we have physical address. Okay, the concept of logical address space that is bound to a separate physical address space is central to proper memory management. ठीक है, मतलब कि जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, जैसे डिस्क में जो एड्रेस है उसको हम रीड करना चाहते हैं, तो वो आपका क्या होगा, एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस एक जनरेट होगा सीपीयू के थ्रू। सीपीयू क्या करेगा, उस एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस पे डेटा को क्या करेगा, वहां से स्वैपिंग करवाएगा आपका मेन मेमोरी के अंदर में, और जो मेन मेमोरी अगर पूरा भरा हुआ है तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ पार्ट को निकालना पड़ेगा, तो वो स्वैप आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो लॉजिकल एड्रेस था रिलेटेड विद डिस्क, वो कन्वर्ट होगा आपका फिजिकल एड्रेस में, बिकॉज वी हैव टू स्टोर दिस इनटू द मेन मेमोरी, एंड मेन मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस कहलाता है। लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू, एज आई टोल्ड यू बिफोर, लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, also referred to the virtual address, क्योंकि आपका जो सीपीयू होता है वो हमेशा डिस्क का एड्रेस को जनरेट करता है, इसीलिए इसको लॉजिकल एड्रेस। लेकिन सीपीयू वर्क किसके हेल्प से करता है, मेन मेमोरी के हेल्प से करता है। तो मेन मेमोरी का जो एड्रेस होता है दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस। एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट इज नोन एज फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है, इसको वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं। फिजिकल एड्रेस इट इज रिलेटेड टू द मेन मेमोरी। लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस आर द सेम इन कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम। याद रखिएगा, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस जो होता है वो कंपाइल टाइम में और लोड टाइम में एड्रेस बाइंडिंग के समय ये दोनों सेम होते हैं। Logical address and physical address differ in the execution time address binding scheme. तो किस समय ये अलग अलग हो जाते हैं, आपका at the execution time ये डिफरेंट होते हैं। कोई पूछे कि सेम होता है क्या लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, तो यस इट कैन बी सेम। कब, जब आपका कंपाइल टाइम हो रहा हो या लोड टाइम हो रहा है एड्रेस बाइंडिंग के समय, बट ये डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। कब, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जो आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है इज द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस। जितने भी लॉजिकल एड्रेस होते हैं उनको एक साथ आप अगर मिला के रख दें तो इनको कहा जाता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस स्पेस किसको कहते हैं, इट इज अ सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम। तो जितने भी फिजिकल एड्रेस जनरेट किए जाते हैं प्रोग्राम के थ्रू, इनको फिजिकल एड्रेस स्पेस कहा जाता है, बाइंडिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेशन रिलेटेड विद टुडेज मेमोरी मैनेजमेंट। होप यू विल एबल टू गेट सम कॉन्सेप्ट। समझ में आया सब कुछ या कुछ रह गया? प्लीज डू लेट मी नो। स्टिल वी हैव 2 मिनट, प्लीज डू लेट मी नो। समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस सर, यस सर। मनीषा कुमारी, सिमरन, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग टुडेज सेशन right here, right now. Thank you, student. Have a nice day.